Uh, Good morning, everyone, and welcome, Praful sir. Uh, you are very popularized entrepreneur, and you are an inspiration for all of us here. And coming from a grassroots level, and then taking your venture to such heights, and contributing to the Indian economy in such a fantastic manner, has been an inspiration for a lot of people, and especially for the youth like us. So Sakshi and I are really inspired from you, and that's why we have done a lot of research for your activities and the kind of work that you have done in the past. So today we have with us the authors of Dhul Dhoop Dhakka, Entrepreneurship by Design, Mr. Arun sir and Mr. Deepak Gadge sir. So, sir, I would request Deepak sir to take it forward from here. Thanks, Nishi. Good morning, Praful. This is Deepak Gadge here, and along with me, I have Arun Lalji. We are Dhul Dhuk Dhaka Entrepreneurship by Design. It's pleasure having you, an young entrepreneur who's made waves in the with a simplistic approach and taking a model to a next level. And you have been inspiring young entrepreneurs and tough times when employment is going to be very difficult when compared to the normal. Your story, students like Nishi and Sakshi and many more, who would like to look at entrepreneurship as an alternative career and seeking employment. Welcome you on the show. And my first question to today, to begin the interview, how did it all start to get into entrepreneurship? Was there any family background where somebody was just started, you got that gut feeling, nahi mujhe kuch aur karna hai. You dropped out of the MBA school on the seventh day. That's a bold decision. See, most of the entrepreneurs have that gut feeling. They take that instinct, they hear their heart, dil ki sunte hain, listen to your जी heart and said, this is what I wanted to do. So can you just throw some light on that? How was that decision? I think that so yeah. Thank you very much for this one session, and I am really thankful कि I received the book अरुण जी and दीपक जी. So entrepreneurship is not, मैंने बोला ना, जिस मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लो और जिससे शादी हो गई उससे मोहब्बत कर लो, तो entrepreneurship भी मेरे लिए वही है. क्योंकि entrepreneurship एक ऐसी चीज है ना जो पढ़ा ही नहीं जा सकती. Entrepreneurship is all about is similar to swimming. जब तक आप पानी में नहीं कूदोगे, जब तक आप पानी में नहीं कूदोगे, आपको मतलब तैरना नहीं आ सकता. तो एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, बिजनेस हो गया, ये ऐसी चीज है कि आपको मतलब कूदना ही पड़ेगा. और वो बोलते हैं ना कि एक बार ओखली में मुंह दे दिया तो मुसली से क्या डरना. तो वो सारी चीजें रही है. तो एंटरप्रेन्योरशिप वाज नेवर मेरा यही था. क्यूबिकल लाइफ होती है, ईएमआई वाली लाइफ जो एमएनसीज में जॉब होती, वही था एक समय का. एमबीए करके अच्छे कॉलेज से जॉब करना, सेटल होना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना लाइफ में, होता था. बट हाँ, मेरे को कुछ करना था. मेरे को ऐसा था कि यार देखो 2 मिनट के लिए कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया, वो बल्ब बना के चले गए. वो सोचते कि मैं क्यों बनाऊं, तो हम आज अंधेरे में रहते. ये मोबाइल जिसने जूम बनाया, वो अगर सोचता मैं जूम क्यों बनाता, आज हम साथ बात नहीं कर पाते. तो दुनिया क्या दिया दुनिया को कि दुनिया हमारे लिए थैंकफुल हो या खुश हो. आप समझ रहे हो. सिर्फ कंजम्पशन करके, उपयोग करके चीजों का अगर आप प्राउड फील कर रहे हो कि मेरे पास एप्पल का फोन है तो मैंने अचीव कर लिया, बहुत बड़ा सेल्फी. अगर वो स्टीव जॉब्स जिसने एप्पल बनाया वो तो खुश ही नहीं हो रहा है. तो बी ऑन दैट कोट, बी ए द स्टीव जॉब्स, डोंट बी अ कंज्यूमर, बी अ क्रिएटर, बी एन इन्वेंटर, बी एन एंटरप्रेन्योर. वो मेरा हमेशा चला है. Wow. Yeah, well said. How did chai come into picture? That's very. देखो, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ना आपको कुछ न कुछ बेचना पड़ेगा. बेचना हो, प्रोडक्ट कुछ भी हो, सॉफ्टवेयर हो, फोन हो, अंडरवेयर हो, चप्पल हो, जूते हो, ये कप बेचना पड़ेगा. तो चाय आ गई हाथ में. जिस चाय को मैं पी के जिंदा रहा कैट के टाइम पे, डिप्रेशन के टाइम पे, तो मैंने कहा यही बेचेंगे, जो अपने साथ थी उसको बेचेंगे. तो जो चीज बिक सकती है वो बिक सकती है. तो चाय आ गई. मतलब ऐसा नहीं कि कोई सोच समझ के चीज है, क्योंकि जब मैकडोनल्ड्स में जॉब करते थे तो फूड इंडस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट आ गया.
हैपनिंग लाइफ होती है, लोग आते हैं खुशी से पैसा दे के जाते हैं, खाते पीते हैं। तो मैकडॉनल्ड्स में 4 महीने जॉब करके चाय मेरे दिमाग में चल रही थी तब। ओके, तो बचपन में अच्छा, मैकडोनल्ड्स में आपको कुछ ऐसा सीखने को मिला वो 4 महीने में? हैव स्केल्ड ग्लोबली, राइट? आपको ऐसा कुछ दिखा मैकडोनल्ड्स में which inspired you to start this stall? मैकडॉनल्ड्स से बहुत इंस्पिरेशन मिला, क्योंकि समझो मैकडॉनल्ड्स जो अमेरिका का कंपनी है, 1958 में जब हम लोग आजादी से बाहर ही आए थे, और वो लोगों ने मैकडॉनल्ड्स बर्गर चालू करा था, मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स ने, उसको रेक रॉक आके पूरे इंटरनेशनल चेन बना देता। हम साला कपड़े पहनना नहीं जानते थे। आप सोचो अमेरिकन कितने आगे, हमसे 150-200 साल आगे, 250 साल आगे। वो लोग आके भारत में वड़ा पाव बेच रहे, बर्गर बेच रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बेच सकते? करना क्या है? करना है, प्रेजेंटेशन अच्छा करना है, टेस्ट अच्छा देना है, सर्विस अच्छी देनी है। तो इट इज वेरी इजी। कभी कभी क्या लगता है, ये डराते हमको। हिंदुस्तान में क्या है, पेरेंट्स हो गया, टीचर हो गया, ये लोग डराते कि ये तुम नहीं कर सकते हो, वो गलत है, वो ऐसा होता है, वो अमेरिकन ही कर सकते हैं, या बड़े शहर का आदमी कर सकता है। आप समझ रहे हो? ये जो स्टीरियोटाइप है, ये फालतू का जो टैबू डाल रहे हैं ना अपने को, ये डराते हैं। आप है ना, पानी में कुदवा दो आदमी को, सब हो जाएगा, वो तैरना अपने आप सीख जाएगा। ये जो है ना, पकड़ो मत उसको, बांध के मत रखो, जकड़ के मत रखो। तो वहां से काफी सीखने को मिलेगी। करो, करते रहो तो चीजें निकल के आएगी सामने, और अपने आप रास्ते खुलेंगे। भाई आप 2 मिनट के लिए सोचो कि आप अहमदाबाद से राजकोट निकलते हो अंधेरे में रात को, कार की लाइट के पूरे राजकोट तक थोड़ी लाइट लगी रहती, कार की लाइट 100 फीट तक रहती है, 100-150 फीट, फिर आगे जाती। तो यही लाइफ भी है, 4 कदम चलो, अपने आप पता चलेगा कि आगे क्या करना। Well said. In fact, हमारे बुक में काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स, एक चीज कॉमन आई है, जब द फियर ऑफ फेलियर जो हमारे पेरेंट्स को है, जो उनको एक जनरेशन है हमारे वर ऑलवेज सिक्योर विद अ जॉब, वो एम्प्लॉयमेंट की, बिकॉज प्रॉब्ली हमारा एजुकेशन सिस्टम वाज लाइक दैट, एंड दे ऑलवेज फियर तो इसका लाइफ सेटल हो। इसका तो कारण कभी एक और बताता बच्चों हूँ। को इसका कारण है, लोग हमारे हिंदुस्तान में सुख शांति चाहते हैं। failure is what has stopped. टेंशन नहीं चाहिए हिंदुस्तानी पेरेंट्स को, हिंदुस्तानी आदमी को टेंशन नहीं चाहिए, सुख शांति से जीवन निकल जाए, वो चाहता है। और अगर आप सुख शांति चाहते हो तो आप तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये जो हम देखते हैं कि जब भी हम कुछ नया स्टार्ट करने चाहते हैं, ये अपना आइडियाज सुनाते हैं, हाँ, लोग सबसे पहले बोलते हैं अरे कहाँ करने जा रहे हो, हाँ, इससे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। सो हमारे डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं। तो आपके बचपन का माहौल किस तरह का था? आप जब अपने दोस्तों के बीच या परिवार के बीच, समाज के बीच, जब आपने अपने आइडियाज या बड़ी सोच जो रखते थे, लोग किस तरह से रिएक्ट करते थे? और आज जब आप कंपेयर करते हैं, आपका ये जो सक्सेस है, उनमें क्या सिमिलैरिटीज देखते हैं? देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं बचपन से स्टूडेंट नहीं रहा, मैं क्यूरियस स्टूडेंट रहा हूँ। मैं क्यूरियस रहा हूँ, हमेशा जिज्ञासु रहा हूँ कि ये कैसे, वो कैसे। मेरे को उस टाइम पे सारे पूरी दुनिया के देशों के नाम पता थे, उनकी राजधानियां पता थी, क्योंकि मुझे यहाँ घूमना था। भाई जिस देश आपको जाना है, उसको आपको थोड़ा बहुत तो कथा आनी चाहिए ना कि क्या है वहां पे। तो वो था मेरी उम्र का मेरा अरुण जी कोई दोस्त नहीं रहा आज तक। मैं बचपन से, जब से समझदार हूँ, मेरे से 3-4 साल बड़े ही मेरे से जो उम्र में रहे वो मेरे दोस्त। क्योंकि मेरी उम्र के दोस्त लोगों से तो मैं बात ही नहीं कर पाता, वो बकवास बातें करते। आज मैं अरुण जी के साथ हूँ तो 4 चीज नहीं सीखूंगा, पर अगर मैं मेरी क्लास के बैठ के रहूंगा तो वो गाली देगा, उस लड़की के बारे में बात करेगा, सुट्टा पीने चलते, ये करना। आप समझ रहे हो? वो चीजें कभी मेरी लाइफ में नहीं। तो अगर आपको बेहतर बनना है तो आपको पहले तो है ना, आपको उस सर्कल में सबसे गंदा होना पड़ेगा। अगर आप बेस्ट हो, इफ यू आर बेस्ट इन द सर्कल, इट्स टाइम टू चेंज द सर्कल। तो इट इज व्हाट ये आप ना, ये मेरा हमेशा से प्रायोरिटी रहा है। अच्छी बात बताई। सो आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि एज अ स्टूडेंट, स्टूडियस होना इज नॉट इनफ या नॉट इवन नेसेसरी, इट इज इम्पोर्टेंट टू बी क्यूरियस। और वो जो क्यूरियोसिटी है आपको नए विचार देती है और नया चीज करने का वो एक हौसला देती है। और साथ आप अपना आसपास किन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, वो बहुत जरूरी होता है। तो आज के दिन में देखिए,
कि आप मुझे अपना, वो बोलते हैं ना कि आप मुझे अपने पूरे 24 घंटे का रिकॉर्डिंग दे दीजिए कि आप क्या करते हो, तो मैं बता दूंगा कि आप अगले 4 साल बाद 5 साल बाद क्या करोगे। मैं आपका फ्यूचर बता, ये भविष्यवाणी कर सकता हूँ। ये एक मतलब साधारण सी चीज है। यस, तो आज के जो स्टूडेंट हैं उनमें भी सेम प्रॉब्लम्स हैं और वो भी सोचते हैं कि मैं क्या करूं। हाँ, तो चाहे वो कोई नॉर्मल स्कूल से कोई प्रोग्राम कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं, हर एक स्टूडेंट में वो रहता है क्या कर सकते हैं। तो आपका एडवाइस स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा? यहाँ पर साक्षी और निशी हैं, इनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हो फ्यूचर के लिए? देखो, आपको सच्ची में पढ़ना है तो फिर आप पढ़ो दिल लगा के। और आप ज्यादा पढ़ते हो, 90% वाले स्टूडेंट हो, ज्यादा स्टूडेंट हो, तो फिर आपको बाकी चीजों के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बाकी क्यूरिकल टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर आपकी प्रायोरिटी या तो पीएचडी करो, प्रोफेसर बनो, या फिर आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करो। फिर वो आपको फोकस, आप बीच में मत रहो। या तो 0 रहो 60 के नीचे, या फिर 90 के ऊपर। बीच वाला कुछ नहीं करेगा। आप समझ रहे हो? बीच में आदमी भाव में फंस जाता है, ना उसको पढ़ने से फुर्सत मिलती है, ना कुछ करने के लिए काम समय होता है। तो मेरा ये कि या आर पार की लड़ाई है जीवन में, ठीक है। दूसरा, हर चीज काम आता है, पढ़ भी लियो तो काम आएगा। मैंने जो अंग्रेजी पढ़ी थी, जो मैंने कम्युनिकेशन स्किल एमबीए करने के लिए करा था, वो सब मैंने चाय बेचने में किया, तो मेरे लिए कुछ भी खराब नहीं गया। सो वॉट एवर यू आर डूइंग टुडे विल मेक सेंस यू आफ्टर 5 years 3 years 4 years डाउन द लाइन। हर चीज का सही होना गलत होना आज पता नहीं चलता है कि सही है गलत, उसका परिणाम 3 साल बाद आता। तीसरी चीज, मैंने खुद ने एमबीए क्यों छोड़ा कि उसका इन्वेस्टमेंट था 20 से 22 लाख कॉलेज का एमबीए का, और 2 साल वो करके भी अगर मेरे को वही 50,000 60,000 की नौकरी मिल रही, तो वो आरओआई गलत है। इससे अच्छा कि मैं आज से धंधा चालू करूं, ताकि पैसा भी खर्च ना हो और मेरे को सीखने को भी मिले। और ये एंटरप्रेन्योरशिप की जो लेगेसी है ना, आप पास ऑन कर सकते हो आपकी आने वाली जनरेशन, बाकी चीजों को आप पास ऑन नहीं कर सकते। ये चीज हमेशा ध्यान या तो ये जो एमबीए है, हर किसी का एक ड्रीम सब्जेक्ट होता है, ड्रीम लर्निंग अपॉर्चुनिटी होता है। और जहां आपके फ्रेंड्स, आपके आसपास के जो कलीग्स हैं, वो सोच रहे हैं कि एमबीए करके मैं कोई बड़े एमएनसी में एक जॉब करूंगा, मैनेजर बनूंगा, उस समय आपने ठीक 7 दिन बाद एमबीए छोड़ दिया। तो इसमें आपके फ्रेंड्स का, आपके फैमिली का, रिलेटिव्स का, या जो वेल विशर्स जिसको बोलते हैं, उनका क्या रिएक्शन था और आप उससे कैसे डील किए? देखो, जैसा कि मैंने कहा, मेरे दोस्त हमेशा से मेरे से बड़े रहे। तो मैं अहमदाबाद, रांची के दोस्त रहते थे कि जो मेरे को बताते थे कि भाई लाइफ में यहाँ भी ऐसी है जैसी है, कोई ऐसा अलग से कोई ऐसा बहुत हवा बना रखा है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। तो मेरे को समझ आ गया था। और दूसरी चीज कि आज की तारीख में आदमी है ना, एडवाइस किससे लेता है? अरुण जी, निशी किससे एडवाइस लेगी? साक्षी से। साक्षी किससे लेगी? निशी से। तो उनको वही मिलेगा जो निशी का लेवल है, थॉट प्रोसेस है। अगर मैं आपसे बात करूंगा तो आपको मेरे को 4 नई चीज सीखने को मिलेगी। तो आप एडवाइस भी किससे ले रहे हो? कोई वो महारत के लोग थोड़ी ना अपने जीवन के, जिन्होंने बहुत झंडे गाड़ रखे। वही कोई चुटमैया भैया होगा, या जो बंदा जिसने कुछ भी स्ट्रगल कर रहा है। तो इफ यू आर गेटिंग एन एडवाइस फ्रॉम समवन जिसने पहले से ये पाप भुगत चुका है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज कि आप सही है या गलत, या तो आपने सही डिसीजन ले लो, या जो गलत डिसीजन हो गया उसको आगे जाके लाइफ में सही कर दो। ये 2 चीज होती है, आपको ऑप्शन भगवान हमेशा देते हैं। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि एडवाइस हम उसी से लेंगे जो वो कर चुका है। यानी जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनसे एडवाइस लेना हमेशा सही रहता है। एक कहावत है कि आपको ये जानने के लिए कि उंगली जलाने से दर्द होता है, आपको अपनी उंगली जलाने की जरूरत नहीं है। दूसरे वो काम कर चुके हैं, उनसे लीजिए। तो ये हमारा जो किताब है, धूल धूप धक्का, ये भी हमने 14 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स का एक्सपीरियंस कैप्चर किया है किताब में। और वो जो एडवाइस है, वो हम सभी के लिए अवेलेबल कर रहे हैं, ताकि वो पढ़ करके उससे कुछ सीख करें। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो धूल धूप धक्का है, धूल यानी कि खुद से काम करना है, आपको मेहनत भी करना है और धक्के खाने पड़ेंगे, लेकिन उन सब से करते हुए हमें अपने सक्सेस को पहुंचना है। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखो सर, बिना ठोकर खाए ठाकुर नहीं बन सकते। दूसरा, मैं आपको बताऊं, आपको क्रिकेट के सारे नियम पता है। ये मैं क्रिकेट गेम को एक मैं बिजनेस मानता हूँ, लाइफ मानता हूँ। आपको जिस बंदे को क्रिकेट नहीं पता है, वो आके बैट बल्ला पकड़ लेगा, बॉलर फेंक रहा है, एलपीडब्ल्यू आउट हो गया, आपको पता है कि एलपीडब्ल्यू आउट, और वो बेचारा रोने लग जाएगा कि यार एलपीडब्ल्यू आउट थोड़ी होता, मैं तो बैट से बोल्ड ही नहीं हुआ। तो जब तक आपको सारे नियम नहीं पता है कि आप आउट कैसे होते, यही लाइफ है। आपको नुकसान होगा, आपको चिल्ला चोट होगी, ये आउट ही है।
आप कैच आउट हो सकते हो, आप हिट विकेट आउट हो सकते हो, आपने बॉल फेंकी और बैट बना दिया स्टेडियम के सामने तो आप आउट हो सकते हो। तो आपको जीवन के सारे नियम जितना जल्दी पता चल जाए कि कहाँ से दिक्कतें होगी, फेल्योर होगा, विकेट होगा, तो आप डिफेंसिव खेलोगे। फिर अगर अच्छी पिच मिली तो आप एग्रेसिव खेलोगे। तो इट्स ऑल अबाउट हैपनिंग कि आप कैसे होता है, आपको नियम पता होंगे जब आप उस पानी में कूदोगे। अच्छा, ये जो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं तो आजकल बड़े-बड़े नाम हैं जैसे इंक्यूबेशन सेंटर्स, एक्सेलरेटर्स, लेकिन आपके एस्टैब्लिशमेंट पे चाय पे चर्चा होती होगी और चाय पे अपॉर्चुनिटी भी डिफाइन होती होगी। तो ये टी एंड अपॉर्चुनिटी एंड चाय एंड चर्चा, इस पे आपका क्या टेक है? आपके यहाँ कितने एंटरप्रेन्योर्स नर्चर हो रहे हैं? बहुत बहुत वो नर्चर नहीं हो रहे सर, उनको पे ना वो बूस्टअप मिल रहा है मेरे यहाँ से मिल के चाय पे चर्चा, जो एक्चुअली में बहुत जरूरी है। क्योंकि ये इंक्यूबेशन सेंटर भी एक तरीके से चाय की दुकान ही है, अच्छी पढ़ी लिखी एसी वाली चाय की दुकान है जहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, जो चाय पे चर्चा होती है। और देखो ये जो धंधे इंक्यूबेशन वाले आईटी कंप्यूटर्स वाले, तो इनको शांत चित्त माहौल चाहिए जहाँ पे ठंडक से इनके काम कर सके। हम लोग थोड़े क्या रोड साइड वाले, हम प्रोफेशनल बिजनेसमैन है, तो हमको रोड साइड वाले कम्युनिकेशन इंक्यूबेशन चाहिए। आप जैसे लोग पड़ोसी चाचा मामा बुआ काका आके सिखाते, वो हमारे मेंटर्स हो गए। आस पड़ोस वाले दुकान वाले वो हमारे मेंटर्स हो गए, वो हमारे साथीदार हो गए। तो ये इंक्यूबेशन ही है पूरी दुनिया। ओके, या दीपक, डू यू हैव अ क्वेश्चन? Well said. Again, इनका जो decision था, and that I'm coming back to the fear of failure. Why people do not step out? कि लोग वो decision नहीं लेते हैं जो उनको करना है, जो चाहत है, उस decision what people should do, because एक तो jump करना है, what you said, जब तक तैरोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। सिमिलर एंड मैं और अरुण एक आर्टिकल वही सोच ही रहे थे। एंटरप्रेन्योरशिप एक शिप, जो जहाज होता है जो समंदर के पानी में निकलता है यात्रा के लिए, वो यात्रा उसको पता नहीं चलता आगे कितना गहराई, क्या तूफान आ रहा है। एक छोटी कश्ती, छोटी नाव एक छोटा डिस्टेंस कवर करेगा, एक मीडियम कश्ती एक बड़ा शिप जो है वो लंबा रास्ता तैर करेगा। बट ये जर्नी के लिए, ये जो नाव एक लंबा रास्ता कवर करने के लिए, उसका प्रिपरेशन जो रहता है टेक्निकली, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीम रिसोर्सेस, काफी मेहनत करना पड़ता है। एंटरप्रेन्योर, आपने इस कश्ती पे, इस नाव पे तो आपने बैठ के यू स्टार्टेड योर जर्नी। अभी तक व्हाट आर द चैलेंज यू ओवरकम? देखो चैलेंज की बात ये है कि पहली बात तो ये कि चाय का ठेला चालू करना वाज द बिगेस्ट हर्डल ऑफ माय लाइफ। क्योंकि मतलब फ्रीइंग फ्रॉम अ गुड फैमिली, रोड साइड चाय का ठेला डालना चालू करना बहुत डिफिकल्ट था। दूसरा ये कि चीजें आती गई, समझते गई। जो एक रोड साइड पे पान की गुमटी वाला, उसने मेरे को शायद हो सकता है कॉलेज से ज्यादा सिखाया कि भैया ऐसा मत करना, नहीं तो ये आगे पुलिस आ जाएगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ जाएगा। फिर उस चीज को कंटिन्यूएशन करना कि आपका कंफर्ट नहीं है, आपका लाइफ का सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं हो रहा है, आपको मेहनत 4 गुना करना पड़ रही है, बर्तन मांजना पड़ रहा है, झाड़ू लगाना पड़ रही है। पर मैंने एक चीज सीखी कि अगर आप आपके धंधे में झाड़ू नहीं लगा सकते हो तो आपको उसका मालिक बनने का कोई हक नहीं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो है मैं बनिया लोग सिखाते हैं, बिजनेस कम्युनिटी के सिंधी लोग सिखाते हैं, ये वाकई में एंटरप्रेन्योर्स, दे आर द रियल एंटरप्रेन्योर्स, बिगर देन दिस इंक्यूबेशन सेंटर और स्टार्टअप वर्ल्ड के जो लोग हैं आज की तारीख में, इनसे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स। और इंडिया इज फुल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स सर। आप सोचो समझो कि जिस शहर में आप रहते हो वहां पे कितने लोग रोड साइड पे धंधा करते हैं, उनको यही नहीं पता कि उनका कस्टमर कौन होगा अगले दिन। ना उनके पास लाइट होती है, ना उनके पास दुकान होती है। अनजान कस्टमर, अनजान आदमी, और अनजान आदमी उनसे सामान खरीद के जाता है। आप समझ रहे हो? दे आर एंटरप्रेन्योर्स। वो सेल करते हैं आपको चीजें, 100 रुपए की चीज देंगे, फिर प्रॉफिटेबल होते हैं। वो एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये एंटरप्रेन्योर नहीं जो अपने आप को को फाउंडर एंड सीईओ बनाते हैं फेसबुक लिंक्डइन पे। ये एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, ये तो सिर्फ एक दिखावे की दुनिया है। एंटरप्रेन्योर्स रियल में आपके पड़ोस में वो लॉन्ड्री वाला है जो दिन में रोज की 1000 जोड़ी करता है और रोज के 1500 1500 2000 रुपए सूखे बचाता है। लॉन्ड्री वाला जो प्रेस करता है, आप समझ रहे हो? वो आपका सब्जी वाला जो दिन भर की 1 2 4 कुंटल आलू प्याज टमाटर बेच देता है, वो एंटरप्रेन्योर है।
उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन देखो, वो सूखी सब्जियों को, खराब सब्जियों को पानी डाल के आपको बेच देता है, आप समझ रहे हो, हरा धनिया आपको फ्री में दे देता है, ये इंसेंटिव्स होता है, ये आपको डिस्काउंट होता है। ये सारी चीजें इंडिया में कब से चलती आ रही, ये परिभाषा बदल गई है, ये मॉडर्निटी में आ चुके हैं ना, तो इनके शब्दकोश बदल चुके हैं, बट चीजें वही है। और वो आज भी तारीख में प्रैक्टिकल लोग हैं। वो अगर लग रहा है कि इस बार धंधा नहीं हो तो दाल रोटी खा के जीवन निकाल लेंगे, पर हमारे साथ क्या हो रहा है इस जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स के साथ, कि इनको सैटरडे संडे को बाहर खाना है, भले पैसा नहीं है जेब में, ये एक दिखावे की दुनिया में चले गए, वो बहुत गलत है। Yeah, well said. Actually, ये जो रोड साइड entrepreneurs, because का खर्चा कैसे निकलेगा उनको मालूम ही नहीं है, बट दे स्टिल सेल। एंड ये लोग मूली गाजर चला तो कल भिंडी, बैंगन चला, कल फल बेचा, कल होली बेचा। कीप इनोवेटिंग एंड उनको टारगेट को कस्टमर को क्या चाहिए वो पैकेजिंग उनको मालूम है। जैसे कड़ी पत्ता दे दिया विच इज अ बोनस। एंड ये सब जो ऑफरिंग्स जो आते हैं, हम लोग स्कूल्स में पढ़ के डिस्काउंट्स बोनसेस देते हैं, मालूम नहीं है। And one of the biggest mistakes which B schools are doing is not putting internship to understand the, अगर ये इंटर्नशिप इनको मिल गई, जैसे साक्षी निशी है, उनका माइंड इतना ब्लो आउट हो जाएगा कि दे विल। सो सर, माय क्वेश्चन टू यू इज, अभी आप MBA चाय वाला, यू आर रनिंग दैट, सो व्हाट इज योर विजन व्हेन यू like Starbucks and Day? I personally want you to reach there, and what is your vision to that level, and why do you think these companies are successful? देखो, स्टारबक्स बनना, मैकडॉनल्ड्स बनना बहुत अच्छी बात है, बनना है, हर किसी का सपना होता है। जो भी एक छोटा मोटा भी चाय का ठेला है, पानी पूरी की दुकान चलाता है, उसका सपना होता है। पर मेरे सपने कुछ अलग है। मैं एक्चुअली मैं टॉर्च बियर बनना चाहता हूँ हिंदुस्तान में, कि जिस बंदे ने चाय का ठेला अगर चालू किया, तो ऐसे हजारों धंधे हैं, ऐसे लाखों लोगों के लिए जो 1000 MBA चाय वाला बन सकते हैं। देखो, आज लाखों करोड़ों चाय वाले हैं, बट वो चाय वालों को रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, इज्जत नहीं मिल रहा जो मेरे को मिला। मैं चाहता हूँ कि उनको भी इंपॉर्टेंस मिले, जाकि जहाँ पे आपको इज्जत मिलती है ना, तो आपका काम करने का नजरिया बदल जाता है, आपकी ताकत बढ़ जाती है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। मेरे को कोई ऐसी 100 करोड़ की कंपनी नहीं चालू करनी, पर मैं सोच रहा हूँ कि 1-1 करोड़ के 100 लोग मैंने बना दिए तो मेरा हो गया $1 बिलियन का काम। आप समझ रहे हो? मैं बिलीव करता हूँ कि कम्युनिटी, मैं बिलीव करता हूँ म्यूचुअल ग्रोथ। मैं बिलीव करता हूँ कि मेरे साथ 4 कदम मेरे फैमिली भी चले, 4 कदम मेरे साथ वाले भी चले। मैं अकेला अगर सक्सेसफुल हो भी गया, और मैं अकेला आदमी चांद पे पहुंच भी गया, तो मैं अकेला क्या करूंगा? मैं अपनी फैमिली को भी बहुत प्रायोरिटी देता हूँ, अपने रिश्तेदारों को प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि मेरे रिश्तेदार, मेरी बुआ मासी के लड़के भी कुछ करे। वो कल को ऐसा ना बोले कि प्रफुल्ल भाई का बहुत बड़ा काम है, पर मैं ऐसा बोलूं कि हम चारों पांचों ने मिलकर समाज में परिवर्तन लाया, मेरी वजह से 50 लोग नए जुड़े। मैं 100 करोड़ का अकेला मतलब हकदार नहीं बनना चाहता हूँ। मैं 1-1 लाख का 1000 हकदार बनवाना चाहता हूँ। मेरा थोड़ा जीवन का परिचय थोड़ा अलग है, मेरी जीवन की परिभाषा Wow. Yeah, this is well said, because हम लोगों ने भी बुक में जब हम लोगों ने लिखा, India does not need billionaires, 1 billion or 5 billionaires. India needs millionaires जो यस 100 करोड़पति बन सके। इसमें से हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा, लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स, एक्सेस मिल जाएगा, and India needs millionaires. I think that's a very good thought, and hats off to you. Nishi, to go next, please. Yes, sir. Sir, thank you so much, sir. Deepak sir के questions already काफी ज़्यादा हमें काफी अच्छे एक्सपीरियंस दिला दिया उन क्वेश्चंस ने कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे आगे लेके जाना है। बट सर, इसके अलावा एक और चीज है जो मैं जानना चाहती थी। मेरी एक फ्रेंड है हु वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर, बट वो हमेशा फेलियर से डरती है। उसने जब मैंने उसे बताया था कि आज हम MBA चाय वाला के CEO मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लोरे की इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो उसने कहा कि एक क्वेश्चन जरूर पूछना कि जब उनको डर लगा था पहली बार एक नया स्टैंड लेने में, एक नया इनिशिएटिव लेने में, तो किस बेसिस पर उन्होंने उस डर को ओवरकम किया और फाइनली
ये चाय लगाने की मतलब डिसीजन ले ले? क्योंकि सर मैंने आपके इंटरव्यूज में भी देखा था, आपने कुल मिला के एक लंबा गैप लिया था सोचने के लिए कि करना है या नहीं करना है, तो फिर उस डर को ओवरकम कैसे किया सर आपने? देखो, दो चीज होती है, आपको जीवन अगर आपको दिया है भगवान ने, आपको काम तो करना है। आप चाहो चाहे ना हो, चाहो आपको काम तो करना है, तो काम वो कर लो जो पसंद का हो। काम तो आपको करना है, तो काम से आप नहीं भाग सकते, कब तक नहीं भाग सकते, ठीक है। दूसरा, जब तक आपको दाल रोटी मिल रही है ना हाथ में, जब तक ये फेल्योर नहीं हो सकता। फेल्योर क्या होता है यार? 10-15 लाख का नुकसान हो गया, आपको किसी ने चिल्ला दिया, गिर गए, पड़ गए, यही फेल्योर गिनता है क्या? भाई आपको दाल रोटी तो मिल रही है ना, तो दाल रोटी से नीचे तो नहीं जाओगे ना आप। जब तक आपको दाल रोटी मिल रही है, जब तक ये फेल्योर नहीं होते। फेल्योर की परिभाषा ही अलग है। आपको फेल्योर क्या लगता है कि मेरे को ये नहीं मिला, आप कंपेयर करते हो उन लोगों से जो पीढ़ी दर बिजनेस कर, उनसे काहे कंपेयर करना? अपने आप को कल से कंपेयर करो। आपको मेरे को कभी नहीं लगा कि मैं फेल हुआ, मेरे को ये लगा कि भाई कैट नहीं हुई, एमबी नहीं हुई, बहुत अच्छी बात है, या अलग अड़े जो नहीं हुए काम उनको मेरा प्रणाम। जो काम नहीं हुआ है ना, मतलब कुछ बड़ा आने वाला है आपके लिए, मेरी बात समझो। आप बहाने बनाना बंद करो, फेल्योर का डर, ये डर कुछ नहीं होता है, सब हो जाता है। सब चीज का समाधान है इस दुनिया में, सब चीज का सॉल्यूशन है इस दुनिया में। नहीं आता है, 4 जनों से पूछो। मैंने डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि ये मेरे लाइफ का डिसीजन था। अगर मैं 45 डेज इसलिए लिया कि 45 डेज के बाद जिस दिन मैंने डिसीजन ले लिया, फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। पर हाँ, करने से पहले मैं 1000 बार सोच लेता हूँ, पूछ लेता हूँ कि सही है, गलत है, ऊपर या नीचे है, साइड में, हाइट में। एक बार आपने ओखली में मुंह दे दिया, मुस्लिम से नहीं डरने। बहुत सही कहा सर आपने, सीधी बात है, मतलब इससे अच्छा कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा। राइट सर, राइट सर। प्रफुल्ल, भाई आप जो कर रहे हो उससे तो बेहतर बनने के लिए आपको कदम बढ़ाने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप चढ़ोगे कैसे, पहुंचोगे कैसे? कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। राइट सर, राइट सर, वेरी वेल सर। एक चीज प्रफुल्ल जी, फार्मर्स, एंड हमारे बुक में भी वी आर सपोर्टिंग अ फार्मर एज एन एंटरप्रेन्योर। पहला बुक शायद है जो फार्मर दिया है एंड फार्मर्स के कंसर्न को एड्रेस कर रहा है। नाउ हम लोग फार्मर को एंटरप्रेन्योर ट्रीट नहीं कर पा रहे थे। First time I think we have treated a farmer as an entrepreneur. Since you are currently with the farmers, how do you look at farmers and they should get a better marketplace and better resources, and no better than a farmer, because इनका क्या है, everything is depending on natural resources and इनसे बड़ा entrepreneur है ही नहीं, because आप लाइफ का जो खाना पीना है ये लोग सप्लाई करते हैं, एंड दे आर योर अन्नदातास एंड दे आर योर वेल working hard for each one of the population in the country and on the planet, and getting them the entrepreneurial status is very very important. तो मेरे साथ, मेरे को क्या लगता है, जो फार्म लॉज है ना, ये बहुत बढ़िया भी है। कहीं ना कहीं किसान अभी तक वही काम कर रहे हैं जो 60 साल 100 सालों से कर रहे हैं। उनको कुछ नया करने के लिए आतुर नहीं होते, वो कंफर्ट लाइफ में आज की तारीख। उनको लगता है खाया, मतलब बोया, निकाला, बेचा और मेरे को घर आ जाने, मेरे को टेंशन नहीं चाहिए। फार्मर्स आर द पीपल दोज हु डोंट टेक मच स्ट्रेस ऑन देयर हेड। सो ये फार्म बिल से उनको सोचने में मजबूर हो जाएगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लगेंगे, थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ेगी, कर्जा बढ़ेगा, तो वो सोचने में काम मजबूर करेगा। अभी आदमी क्या, किसान सच्ची में फ्री होता है, वो 4 महीने कुछ नहीं करता, फसल काटने का काम करता है, बोने का काम। इस बीच में कोई ऐसा लंबा प्रोसेस नहीं है। किसान कुछ नहीं करता, मजदूर करता है। किसान बिल्कुल घर में बिल्कुल ठाट बाट से टीवी देखता है, फोन चलाता है। तो ये प्रोसेस जो है बिल्कुल पिछड़ेपन की या आलस्यपन की या फ्रीनेस की, वो हट जाती है, तो ये एंटरप्रेन्योर बन सकता है। किसान को टाइम लेवरेजिंग नहीं आता है, किसान को रिसोर्सेज का उपयोग करना नहीं आता, किसान को पैसे का यूज करना नहीं आता, फाइनेंशियल नीड्स नहीं पता, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं पता। ये सारी चीजें बीइंग अ किसान यू नीड टू नो। वो किसान आज भी मजबूर है, निर्भर है सरकार के ऊपर। वो निर्भरता कब तक रखोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल सही। आपने जो किसानों के बारे में कहा कि वो अपॉर्चुनिटी को उन्हें समझना है और उन्हें अपना भविष्य खुद बनाना है। हाँ, क्योंकि दूसरे के ऊपर क्यों निर्भर रहें, हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और सदियों से हम जो देखते हैं कि हमारे देश में किसान जो है वो काफी इनोवेटिव रहा है।
हर तरह से किस तरह से क्रॉप रोटेशन करे, किस तरह से फसल को मार्केट तक पहुंचाए, किस तरह से पूरा एक सेल्फ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाए, वो किसान हमेशा करता आ रहा है। तो अभी जो उनको जो अड़चने आ रही हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी का यूज करना या एक फॉर्मल प्रोसेस का यूज करना, हम उसमें सब एक दूसरे का सहयोग करके एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। वेरी ट्रू। हाँ, अच्छा, एक चीज बताइए कि कई बार जब हम जीवन में चैलेंजेस फेस करते हैं, जो हो रहा है हमारे अनुरूप नहीं होता है, तो हम काफी घबरा जाते हैं। और उसका एक बहुत ही रिसेंट एग्जांपल है कोविड। हाँ, कोविड ऐसे आया तो एक नया सेट ऑफ पॉलिसीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस लाया, जो सबको फॉलो करना पड़ा, जो बिजनेस में काफी रेस्ट्रिक्ट किया। कई लोग उससे घबरा करके बिजनेस से पीछे हट गए, लेकिन कई लोग उसमें अपना इनोवेटिवनेस लाए और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये कमी है, लेकिन इसके बावजूद हम अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, लोगों ने क्या किया और क्या करना चाहिए, इसके बारे में जरा बताइए। देखो, सिंस टाइम इज रनिंग एज वेल, सो मैं आपको 2-3 पॉइंट कोरोना के बता के थोड़ा एंड करना चाहता हूँ कि पहली चीज तो ये कि कोरोना आपको अकेले को, कोरोना पूरी दुनिया को, जो चीज पूरी दुनिया को है वो नॉर्मल हो गई, वो आपके लिए अभिशाप नहीं होना चाहिए। पहली चीज तो ये एक पॉजिटिव थॉट ले रहा हूँ। दूसरी चीज, इस कोविड में जो ऊपर था, जो नीचे था, जो बीच में था, वो ऐसा बिल्कुल वो डब्बा नहीं होता है, कंकड़ भर दो तो एक जैसा हिला दो तो वो पूरा एक जैसे बैठ जाते हैं। सो वी आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म नाउ यू डोंट हैव एक्सक्यूज कि वो आगे हम पीछे, वो पीछे हम आगे। अब आपको समय मिला है अपने आप को 6 महीने में, जो 3 महीने का लॉकडाउन लगा, जो लोग रुके हुए हैं उनसे स्पीड में खरगोश वाली बात आ गई कि आप खरगोश की तरह दौड़ जाओ, खरगोश की तरह सो जाओ। तो नाउ यू डोंट हैव एक्सक्यूज, आपको यूनिवर्सल एक्सक्यूज मिल गया है, या यूनिवर्सल कारण मिल गया, डब्बा हिलेगा के सारे अंकड़ बैठ जाएंगे। और कोविड में बहुत सारी चीजें सीखी कि फैमिली प्रायोरिटीज क्या होती है, पर्सनल फाइनेंशियस क्या होते हैं। अभी तक क्या हुआ कि आपके जैसे हमारे पिताजी की उम्र के लोग, पेरेंट्स जो है, और हम जैसी जनरेशन के पास कभी भी पापा और मम्मी के साथ बैठने का समय नहीं था, वाद संवाद नहीं होते थे घरों में, एक दूसरे का थॉट प्रोसेस नहीं मैच होता था, तो लड़ाइयाँ बहुत होती थी कि बेटा क्या सोचता है, पापा क्या सोचते हैं, मम्मी क्या सोचती है, यही बिजनेसेस में होती है। तो ये फ्री टाइम मिला एक दूसरे को जानने का, कि सबकी बुराइयां अच्छाइयां पता चली, थॉट प्रोसेस पता चला, मजबूरियां पता चली, स्ट्रेंथ पता चली। इस टाइम से पता चलता है आदमी को है ना, सर्वांगीण विकास बहुत अच्छा समय मिला है कि समाज, समय, परिवार, बिजनेस सब साथ में कैसे लेके चलते हैं, कोविड ने बड़ी भांति सिखाया। एक लास्ट क्वेश्चन है कि हमारा ये जो किताब है धूल धूप धक्का, एंटरप्रेन्योरशिप बाय डिजाइन, तो उसमें हम बोल रहे हैं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, आपका भविष्य आप खुद डिजाइन कर रहे हो, हमें क्या करना है और किस तरह से सक्सेस हासिल करना है। और साथ में हम सब एंटरप्रेन्योर्स के, हर लेवल के एंटरप्रेन्योर्स का एक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं, जिसमें सब एक दूसरे से जुड़े और एक दूसरे का मदद करते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाए। इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखो सर, है ना, दिक्कत क्या है ना कि हिंदुस्तान के युवाओं को कोई बताने वाला नहीं है कि बेटा, मतलब वो हनुमान जी को क्या जामवंत नहीं कि भैया आप में शक्ति है, उड़ जाओगे आप, ये संजीवनी लाओगे, आप जा सकते हो। तो हनुमान जी तो सब है, इनको जामवंत की जरूरत है जो बता सके कि हाँ भाई तेरे में एनर्जी है, तू ये कर सकते है। मतलब बंदे को पता ही नहीं कि वो क्या है। इफ व्हेन यू नो, यू डोंट नो, यू हैव बेटर चांसेस ऑफ लर्निंग। क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, लर्न करना है, अनलर्न करना है, प्रायोरिटाइज किसको करना है, टाइम किसको स्पेंड करना है। पानी के ऊपर पत्ते की तरह बहना अगर हिंदुस्तान का युवा बंद कर दे तो अपनी खुद का राष्ट्र कभी भी बना सकता। आपको पानी बनना है, पानी के ऊपर जो पत्ता बहता है, जो चीजें बहती है, जहां पानी जाता है वो वहां चली जाती है, वो मत बनिए, आप पानी बनिए, जहां आप चाहते हैं वहां जाइए। बिल्कुल जी, धन्यवाद। राइट सर। सर साक्षी, मेरी फ्रेंड साक्षी भी कुछ बातें करना चाहती है और वो ही लाइक कंक्लूड भी करेगी। तो साक्षी, कैन यू टेक इट फ्रॉम हियर? Yeah, sure. Thank you so much, sir. First of all, to be a part of, being there for today. We really learned a lot out of this thing, and students like us, youngsters, jo MBA kar rahe hain, we had a very different mindset of how we see MBA and how we see entrepreneurship. So thanks a ton for giving us this light and making us understand what the actual journey is. And yeah, thank you so much, sir. That's all.
Arun you sir, so you want to say something? या तो सबको ही हम लोग मिल करके बोलेंगे धूल धूप धक्का. Yeah. हाँ, Dhakka. Entrepreneurship by design. Thank you. Thank you so much, sir. Oh my Thank you God. so Thank much. you so much, Praful All the sir. best to you. Thank Thank you you so very much. much Thank for you your so work, much, Varun sir. ji and Deepak ji. I would really Yeah. love to Yeah. read it Thank very you. soon. जैसे मैं पहुंचता हूँ घर, मैं रीड करूंगा उसे. Yes, हाँ, thank उसे you. पढ़ करके आप अपना कमेंट्स दीजिए, फीडबैक दीजिए. वी वुड लव हियर फ्रॉम यू. Sure. मुझे इसके Thank you. पिक्चर्स पहुंचाइए और आपका ऑफिशियल अकाउंट पहुंचाइए. मैं स्टोरी डलवाऊंगा इंस्टाग्राम से, हमारे ऑफिशियल अकाउंट से, ताकि आपको प्रमोशन मिले. ठीक है. Thank you Thank you so so much, much, sir. sir. Thank जी you जी, so धन्यवाद. much. Yeah. थैंक यू. All the best to you too, sir. Thank you so much. Yes. थैंक यू. Thank you. Bye bye. It was really good. Yes, sir. काफी सही था. I think we can stop the recording now. Yeah. एक मिनट.